لندن میں بریگزٹ کے خلاف لاکھوں افراد کا احتجاج، دوبارہ الیکشن یا ریفرینڈم کا مطالبہ۔ یورپ سے علیحدگی کسی صورت قبول نہیں، لندن کی فضا نو بریگزٹ نو ڈیل کے نعروں سے گونج اٹھی۔ مظاہرین کا وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ۔ لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے زیر اہتمام یوم پاکستان کی پروقار تقریب، ہائی کمشنر نفیس زکریا نے پرچم کشائی کی۔ کہتے ہیں پاکستان وزیر اعظم عمران خان کا امن کا پیغام دنیا بھر میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ تقریب میں گلوکارہ سارا پیٹر اور سہیل سلامت کی شاندار پرفارمنس۔ برمنگھم میں پاکستان کونسلیٹ میں یوم پاکستان کے حوالے سے شاندار تقریب، سفارتی عملہ اور اوورسیز پاکستانیوں کی بھرپور شرکت۔ اوورسیز پاکستانی وطن کے سفیر اور ملکی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ قونصل جنرل احمد اسماعیل کا پرجوش خطاب، یوم پاکستان کا کیک بھی کاٹا گیا۔ مانچسٹر میں پاکستانی کونسلیٹ میں یوم پاکستان جوش و خروش سے منایا گیا۔ پاکستانی قونصل جنرل عامر آفتاب قریشی نے پرچم کشائی کی۔ پاکستان کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے، شرکا کا اظہار خیال۔ گلوکاروں نے ملی نغمے گا کر خوب داد وصول کی۔ بریڈ فورڈ میں بھی پاکستانی کونسلیٹ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یوم پاکستان کی پروقار تقریب، کونسلر عطاشی فضل الرحمان نے پرچم کشائی کی۔ شرکا کی ہم وطنوں کو یوم پاکستان کی مبارکباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ 9 بجے کے اس بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ صدف یاسر، اور ناظرین میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید۔ ناظرین یہ وہ مقام ہے جو 23 مارچ 1940 کو اسلامیان ہند کے 1 لاکھ افراد کی مجمع گاہ بنا۔ یہاں پر قرارداد پیش کی گئی جسے قرارداد لاہور کا نام دیا گیا، جو بعد میں قرارداد پاکستان بن کر سامنے آئی۔ اس قرارداد کو 1940 کو منظور کیا گیا اور 1947 میں یہ وطن ہمیں نصیب ہوا اور 23 مارچ کو ہم یوم پاکستان کے طور پر مناتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہے یوم پاکستان کا دن، آج ہے تجدید عہد کا دن۔ اس دن اس میدان میں ہمارے آباء و اجداد نے اس ریاست کے لیے مل کر عہد کیا تھا، اور ایک عہد اس ریاست کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ یہ ملک ہمیشہ شاد و آباد رہے۔ سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ وطن اپنا ایماں، گھر کوئی چاہے بہک جائیں گے ہم تو گرج کر یہ بات بتلائیں گے ہم، جو نفرت پھیلا کر وطن بیچتے ہیں وہ اپنی ہی ماں کا کفن بیچتے ہیں، کسی کو یہ سودا چکانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ ہر دل کی آواز پاکستان زندہ باد، یوم پاکستان تجدید آسم کا دن۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان ڈے پر اسلام آباد کے پریڈ ایونیو میں مسلح افواج کی جانب سے شاندار پریڈ کا مظاہرہ کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ عسکری قوت کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ اسی پر رپورٹ تیار کی گئی ہے، آئیے دیکھیں۔ طوفان ہم چٹان ہم پاسبان، یوم پاکستان پر پاک افواج کا عسکری قوت کا بھرپور مظاہرہ۔ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم عمران خان، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ جاوید باجوہ پریڈ وینیو میں تشریف لا چکے کے مہمان خصوصی ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد تھے، بحرین کے نیشنل گارڈ کے سربراہ اور آذربائیجان کے وزیر دفاع بھی مدعو تھے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے F-16 طیارہ اڑا کر ایئر پاسٹ کا آغاز کیا۔ ایئر چیف نے کاکپٹ سے براہ راست پیغام بھی دیا۔ السلام علیکم پاکستان، this is your air chief. Make no mistake, we'll always safeguard Pakistan, presenting to you our wings of freedom and the guardians of your skies. پاکستان زندہ باد۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ پریڈ ایونیو میں پاک فوج کے علم بردار دستے نے مارچ پاسٹ کا آغاز کیا۔ پاکستان
खवातीन और गर्ल्स गाइड के दस्तों ने मार्च पास्ट का मुजाहरा किया। अजरबैजान, सऊदी अरब की फौज के दस्ते और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के दस्तों ने भी मार्च पास्ट किए। दुश्मनों के लिए खतरे की अलामत जदीद तरीन मिसाइल्स गौरी, बाबर, क्रूज, शाहीन 3 और रथ की नुमाइश की गई। पाकिस्तान में तैयार किए जाने वाले ड्रोन सबकी तवज्जो का मरकज बन गए। दुश्मन पर लर्जा तारी करने वाले अल खालिद टैंक, अल जरार टैंक, TATUD टैंक के दस्तों ने धाक बिठा दी। वन अप फॉर्मेशन में चलने वाले अल खालिद टैंक के इस दस्ते का ताल्लुक आर्मर्ड कोर रेजिमेंट में वाहिद निशाने हैदर का एजाज हासिल करने वाली 20 लांसर दी हैदरी रेजिमेंट से है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आज यौम पाकिस्तान पर होने वाली दीगर तकारीब का अहवाल आप जानेंगे मेन न्यूज स्टूडियो से। जी हाँ, देखते रहिए 92 न्यूज। ब्रेक्जिट के खिलाफ और दूसरे रेफरेंडम की हिमायत में बरतानवी अवाम सड़कों पर आ गई। नो ब्रेक्जिट नो डील के नारे लगाए। बरतानवी वज़ीर आज़म ट्रेज़ा में मुस्ताफ़ी होने का भी मुतालबा। ट्रेड यूनियन के लीडरान का कहना है कि यूरोप से अलहदगी बरतानिया को तबाही की तरफ ले जाएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हसन। लोगों का कहना था कि बरतानिया का यूरोपीय यूनियन से इनखलाब मुल्की मईशत के लिए नुकसानदेह साबित होगा। लाखों यूरोपीय ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोग बरतानिया में अरसा दराज से मुकीम हैं और किसी भी सूरत में बरतानिया से अलग होना नहीं चाहते। लोगों ने दोबारा बिल पार्लियामेंट में पेश होने पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ट्रेज़ा मे को अवामी मुफाद के खिलाफ किसी भी मुसव्वदे को पार्लियामेंट में पेश नहीं करना चाहिए और दोबारा रेफरेंडम के जरिए या फिर नए इलेक्शन के जरिए लोगों से राय लेनी चाहिए। In the future, the fact that this many people turned out will be remembered forever. I don't think we're being represented very well currently by the government, and we need to make our voices heard. The deal that was put to people 3 years ago in the campaign is the one that's going to be delivered, and I think people should have a choice in that. I think I speak for most Londoners and a good proportion of British people that we are very anti-Brexit. We think it's the biggest disaster facing our country for decades. Yeah. Do we want a second referendum? I'm very worried about Brexit. I think that the whole concept of Brexit is bad, and I'm particularly concerned about what's happening at the moment. Yes, but I think people can change their minds. We've had 1,000 days, it's been a shambles. I'm here today because I don't really feel that the first referendum was a fair referendum, and I think now that we have a better idea of what's going to happen. I don't agree with Brexit, and I hope we revoke Article 50, and there is no good for Britain to leave the EU. We get all the benefits, and if we leave, we're going to be just alone. And I want to be here to show that I don't agree at all with it. I don't like Brexit at all. I think it's a huge mistake for Europe, for the UK, for everybody. I'm here today because I think we need to stop any chance of leaving with no deal, and I would prefer to remain in the European Union. I think people were asked to vote on something incredibly complicated, and now we understand the implications. Because the first vote was very general, okay? It was a kind of wide open spectrum, and now we have something concrete. And it's logical that if you have something concrete, you vote on something concrete and not a general abstraction. So that's why we believe there ought to be a second vote. मुजाहिरीन का मुतालबा था कि हुकूमत आर्टिकल 50 को रोके और किसी सूरत यूरोप को बरतानिया से अलग ना किया जाए। ब्रेक्जिट बरतानी हुकूमत के गले की हड्डी, उगली जाए ना निगली जाए। अब देख सकते हैं कि इस वक्त लाखों की तादाद में लोग ब्रेक्जिट के खिलाफ भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि हुकूमत आर्टिकल 50 को रिवोक करे और दूसरे रेफरेंडम का ऐलान करे। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन की सड़कों पर ब्रेक्जिट के खिलाफ लोग ही लोग। बरतानवी वज़ीर आज़म से स्टॉप ब्रेक्जिट का मुतालबा। 8 से 10 लाख अफराद की शिरकत। मुजाहरे में मौजूद लोगों ने ब्रेक्जिट को बरतानिया और यूरोप के खिलाफ
साजिश करार देती है। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करते हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान से। तो गुलाम हुसैन बताएगा इन मुजाहिरीन का क्या कहना और कितने लोग हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल ठीक है आपने कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग इस वक्त ब्रेक्जिट के ख़िलाफ़ मुजाहरा कर रहे हैं और ये बहुत बड़ा जो जुलूस है जो कि एहतजाजी जुलूस मैं कहूँगा कि वो हाइड पार्क से इस वक्त शुरू हो चुका है और वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर जाएगा जहाँ पर जो मुकर्रीन हैं वो इस एहतजाजी जो जुलूस है इसे खिताब भी करेंगे। लोगों ने यहाँ पर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्ले कार्ड उठा रखे हैं। लोग इसको ये मुजाहरे की ये ख़ास बात है कि इसको कोई ख़ास पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं कर रही बल्कि ये लोग जो है वो खुद ही जो है वो घरों से निकल कर आ रहे हैं और ब्रेक्जिट के ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज के अंदर जो है मुजाहरा कर रहे हैं। लोगों का कहना था कि बरतानिया को यूरोप के साथ ही रहना चाहिए, उससे अलग नहीं होना चाहिए। और इस मुजाहरे के अंदर यूरोपीय यूनियन के भी जो कंट्रीज़ के यहाँ पर लोग हैं वो बड़ी तादाद के अंदर शरीक हैं। हमने कुछ देखा पाकिस्तानी इंडियन लोग भी यहाँ पर इस एहतजाजी जो मुजाहरा है इसके अंदर शरीक है और लोगों ने बड़े दिलचस्प किस्म के जो है वो प्ले कार्ड उठा रखे हैं जिसमें उनका मुतालबा है कि नो ब्रेक्जिट, नो थ्रीसा में और इस तरह मेंबरान जो पार्लियामेंट हैं उनको भी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के जो मेंबरान हैं उनको मुखातब करके लोग कह रहे हैं कि यूरोप को बरतानिया से अलग ना किया जाए। लोगों की बहुत ज़्यादा बिजनेस टाइज़ हैं, इसके अलावा लोगों का आपस में मिलना जुलना रहना है और हर तरह से जो है वो लोग ये अपनी ताकत शो करके वज़ीर-ए-आज़म थ्रीसा में को ये बावर करा रहे हैं कि वो ब्रेक्जिट के ऊपर अभी भी वक्त है कि वो अपना फ़ैसला बदल ले और जो आर्टिकल 50 को ट्रिगर करने के लिए जा रहे हैं उसको रोका जाए और ताकि जो है वो बरतानिया यूरोप के साथ ही रहे। जी अच्छा गुलाम हुसैन, इस मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात के बारे में भी हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, हमने देखा कि सिक्योरिटी के बिल्कुल बड़े खसूसी इंतजाम किए गए इस हवाले से और हमने यहाँ पर देखा कि जो लोग हैं वो सुबह से ही जो है वो लंदन आना शुरू हो चुके थे और हमारी इत्तलात के मुताबिक बरतानिया के दीगर शहरों से भी बहुत बड़ी तादाद में बसें जो हैं वो बसों के ऊपर लोग आए हैं यहाँ पर इस एहतजाजी मुजाहरे में जो है वो शामिल होने के लिए और पुलिस ने जो है वो किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए कुछ अतराफ में जो है वॉक थ्रू गेट भी लगाए हैं। इसके अलावा पुलिस की भारी तादाद जो है वो हर तरफ मौजूद है और जो ट्रैफिक है वो तमाम जो हाइड पार्क से डाउनिंग स्ट्रीट जाने की वाले जितने रास्ते हैं उनको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है और हमें नज़र आ रहा है कि हर तरफ सड़कों के ऊपर जो है वो लोग ही लोग हैं। जी पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम पाकिस्तान के मौके पर परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई जिसमें पाकिस्तान कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने परचम कुशाई के इस दौरान कौमी तराने की धुनों के साथ फजा फलक शुगाफ नारों से गूंजती रही। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट देखिए। पाक वतन की हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे और इस जानिब उठने वाले हाथों को पूरी ताकत से काट देंगे। इसी मिली जज्बे से यौम पाकिस्तान की बरतानिया में मरकजी तकरीब पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में हुई। पुरवकार तकरीब का आगाज परचम कुशाई और कौमी तराने से किया गया। तलावत कलाम पाक के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आज़म इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। सदर मुमलिकत का पैगाम हेड ऑफ चांसरी आसिफ खान जबकि वजीर आज़म का पैगाम फर्स्ट सेक्रेटरी जवाद अजमल ने पढ़कर सुनाया। तकरीब से खिताब में हाई कमिश्नर नफीस जकरिया का कहना था कि हालिया दिनों में पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर बेपनाह कामयाबियां हासिल की। पुलवामा जैसे वाक़यात की सूरत में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की गईं, जबकि वजीर आज़म इमरान खान के अमन के पैगाम को कदर की निगाह से देखा गया। यौम पाकिस्तान को हमेशा ही हम जोश खरोश से मनाते हैं, तमाम पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ है। इस दफ़ा जज्बा जो है मैं देख रहा हूँ कि कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है मुझे माशाअल्लाह, और मेरी दुआ है कि ये जज्बा हमेशा बढ़ता फरोग पाता रहे, क्योंकि यही जज्बा होगा जो हमें तरक्की को मुनासिब पर लेके जाएगा जहाँ हम उससे इस्तेमाल रखते हैं। इतने डिफिकल्ट मराइल के बाद जब इंडिया ने काफ़ी हम पे इल्ज़ाम लगाए, लेकिन हमने बड़ा अच्छा पॉजिटिव मैसेज दिया और उसकी वजह से बड़ी हमारी अच्छी रेपुटेशन हुई पूरी दुनिया में। डे सेलिब्रेट करने आई हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे, बहुत जोश और खरोश है यहाँ पे और ये एंजॉय कर लॉट हियर। ये अहद का दिन है, बहुत मज़ा आ रहा है और ख़ास तौर पर प्रदेश में रह के इस तरह के दिन हम लोग तो ढूंढ रहे होते हैं। अल्लाह करे साल के बाद ये दिन आए, हम सब मिल के सेलिब्रेट करें और बहुत अच्छा लगा।
हमेशा पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन मुझे इनवाइट करती है और मैं मिली लग में आकर अपने वतन की जो है पाकिस्तान की खिदमत करती हूँ और पाकिस्तान तमाम पाकिस्तान को मेरी तरफ से बहुत बहुत यौम पाकिस्तान मुबारक। घर से दूर आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है, जहाँ पे हमारा चीज़ नज़र आ रही होती है वहाँ पे आपको एक यादें आती हैं, तो डेफिनेटली फिर आप आते हो वहाँ पे। 23 मार्च फुल जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं और आज सारे पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ कहीं भी मौजूद हैं सब बहुत खुश हैं, अपनी अफवाज के साथ अपने मुल्क के साथ हर टाइम के लिए खड़े हैं उनके पीछे शाना बशाना। यहाँ पर पाकिस्तान की सेलिब्रेशन के लिए आए हैं, इतनी खुशी होती है कि हमारी पाकिस्तानी कोई तकरीब आए तो हम ज़रूर उसमें शामिल होते हैं। मैं अपने बच्चों को भी लेके आई हूँ। आई थिंक ज़बरदस्त ये प्रोग्राम है और सारे पाकिस्तानी हमारे साथ होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारा मकसद सिर्फ अमन है और यहाँ पे भी हर जगह हमने आके यही महसूस किया है कि हमें हमारे मुल्क की मोहब्बत हर जगह चाहिए। हम बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ पे हैं लेकिन हम यही कहेंगे कि हमें हमारे हर जगह पे अमन ही मिलना चाहिए। माशाल्लाह जज्बा दुबाला हो गया है, पाकिस्तानियत का एहसास हो रहा है। उस दिन की याद ताज़ा हो गई है जिस दिन 23 मार्च 1940 को ये रेजोल्यूशन पास किया गया था और रेजोल्यूशन ऑफ लाहौर जो कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पे भी जाना जाता है, पाकिस्तान का तसव्वुर दिया गया था और हम उन तमाम कायदीन का बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पाकिस्तान हमें तोहफे में दिया। देखें जी जैसे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी भरपूर तरीके से खुशियां मना रहे हैं, उसी तरह दरियाए गैर में पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के हवाले से आज भरपूर तरीके से ये दिन मना रहे हैं और इस यकजहती के साथ कि चाहे हमारा वाबस्तगी किसी भी सियासी जमात के साथ हो, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान की बात होगी वहाँ पे आप सब मुत्तहिद है। पाकिस्तान जिंदाबाद। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में ही हूँ आज, यकीन करें, और बहुत अच्छा है और पाकिस्तानी एम्बेसी ने बहुत अच्छा यहाँ पे इंतजाम किया है और खाने पीने का भी बहुत अच्छा टाइम गुजरा है, बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानियों को और ज़्यादा मुतहिद होने की ज़रूरत है, जो हमारे हालात चल रहे हैं इंडिया के साथ और जो अभी वाक़या हुआ न्यूजीलैंड में, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान भी जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आए और यौम पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छा मौका और कौन सा हो सकता है अपने पाकिस्तानियों को एक साथ देखने का। तकरीब के बाद मारूफ गुलकारा सारा पेचर और सुहेल सलामत ने मिली नगमे गाकर हाजरीन को खूब महसूस किया। हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने बच्चों के साथ मिलकर यौम पाकिस्तान का केक भी काटा। तकरीब में सिविल सोसाइटी समेत पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात पाक फौज के अफसरान ने भी शिरकत की। भारतीय जमहूरियत के बाद पहली मरतबा होने वाले यौम पाकिस्तान की इस तकरीब में पाकिस्तानियों ने बहुत मिली जोशो जज्बे से शिरकत की। लोगों का कहना था कि पाकिस्तान की तरफ उठने वाली हर मैली आंख को फोड़ दिया जाएगा। साथी रिपोर्टर वसीम कादरी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। पाकिस्तानी कौंसल बर्मिंघम में भी 23 मार्च के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कौंसल जनरल अहमद इस्माइल की पुरजोश तकरीर ने दिलों को गरमा दिया। इस मौके पर यौम पाकिस्तान का केक भी काटा गया। पाकिस्तान के हवाले से खुसूसी डॉक्यूमेंट्री को शुरका ने बेहद सराहा। मिली जोश जज्बे से भरपूर तकरीब का अहवाल बता रहे हैं बर्मिंघम से आबिद कासमी। बरतानिया के दीगर शहरों की तरह पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में 23 मार्च के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान, सफारती अमला, सहाफ़ियों और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ, जिसके बाद सदर और वज़ीर आज़म के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। तकरीब से खिताब करते हुए कौंसल जनरल अहमद इस्माइल का कहना था, पाकिस्तान इस दुनिया में हमारे लिए रहमत से कम नहीं। दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान एक आज़ाद और नजरियाती रियासत है। कौंसल जनरल का कहना था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी असल सफ़ीर हैं। आप पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की अहमियत रखते हैं। पाकिस्तान इस वक्त करप्शन के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रहा है। We reaffirm our resolve to continue our political, diplomatic and moral support for the Kashmiri cause at every international forum. तकरीब में मुकामी ओहदेदार ने भी इजहार ख्याल किया। इस मौके पर शुरका को पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अहमद इस्माइल, वाइस काउंसलर सरदार खटक, अजमल चुगताई, जैनब खा, आसिया हुसैन और दीगर ने कहा, बैरून मुमालिक कौमी दिन मनाने का मकसद अपने वतन से मोहब्बत के मस्बत चेहरे को दुनिया के सामने उजागर करना है। और पाकिस्तान के नेशनल डे के सिलसिले में 23 मार्च हम साथ मिलकर मना रहे हैं और इसमें यहाँ पे आज हमने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के मैसेजेस उर्दू और इंग्लिश में पढ़ के अपने हाज़रीन को सुनाए हैं, जिसके अंदर हमें कौमी यकजहती का पैगाम दिया गया है। की तकरीब बहुत ज़बरदस्त रही, बड़ी तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने इसमें शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पाकिस्तान के पैगामात इस मौके पे, और आप देख रहे थे कि कितना जज्बा था लोगों का पाकिस्तान से मोहब्बत का, और पाकिस्तान से आप कह सकते हैं कि नज़दीकी का, इतने दूर रहते हुए वो पाकिस्तान के कितना करीब महसूस करते हैं। इस तरह की तकरीबात का मकसद ही यही होता है कि हम ना सिर्फ अपने आबा व अजदाद की कुर्बानियों को याद करें, उनको खराज तहसीन पेश करें, बल्कि अपने अज़म की आप कह सकते हैं कि तजदीद भी करें और अपनी मोहब्बत की अपने मुल्क के साथ। मेरी तरफ से मेरी मसीही कौम और तमाम मनारटी जो पाकिस्तान में उनकी तरफ से यौम पाकिस्तान की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आज मेरा पैगाम है कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं। An excellent gathering here today, organised by Mr. Ahmed Ismail. I'd like to wish everyone happy National Pakistan Day. हम मुँह में वफाओं का पास रखेंगे, मरते हुए भी तेरी ही प्यास रखेंगे। अपनी जवानी की राहतें, अपनी उमंगों की चाहतें, सब जज्बों की सायतें, तेरा वजूद है मेरा वजूद है, तेरा क़याम ही मेरा क़याम है, तू है तो मेरा नाम है, तपती दोपहर में नहलस्तान है, तू मेरा पाकिस्तान है, मेरी ज़ात की पहचान है, मेरा पाकिस्तान। मंजिल का इस धरती का तकदीर करें ताबीर करें, आओ वतन तामीर करें। तारीख खुशगवार है, हमें फ़ख्र है कि अफ़वाज पाकिस्तान पर और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पर पूरी एक तारीख रकम की है। कौमों की तारीख हमेशा हाक में वक्त लिखा करते हैं। मशहूर है इस वक्त पाकिस्तानी कौम का मुराद भी बुलंद है और पाक आर्मी की दिलेराना जो एक परफॉर्मेंस है उस पर पूरी दुनिया भी फ़ख्र करती है, हमें भी इस पर फ़ख्र है। तकरीब के आखिर में तकरीब के शुरका ने मिलकर केक काटा। इस मौके पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। कौमी तकरीब के शुरका का जोशो खरोश आखिर तक काबिल दीद था। शुरका ने इस मौके पर वतन अजीज की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं भी की। बैरून मुमालिक में जिनको सेलिब्रेट करने का मकसद यह है कि पाकिस्तान का मुस्बत पहलू उजागर किया जाए। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया के दिगर शहरों की तरह ब्रेस्टफोर्ड में भी यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। तकरीब में पाकिस्तानी कौंसलेट का अमला, MP इमरान हुसैन, नाज शाह और साबिक मेयर आबिद हुसैन जमाती ने खुसूसी शिरकत की। नन्हे बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर माहौल को करवा दिया। वकार बाबर की रिपोर्ट में देखिए। यौम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब का आगाज पाकिस्तान कौंसलेट ब्रेडफोर्ड में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने जोश और जज्बे के साथ शिरकत की। तकरीब का बाकायदा आगाज सलामत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने समाम बांध दिया। दिल में है आरज़ू वो जो रूबरू, तेरे तिलावत का कितना मजा आएगा।
तकरीब का आगाज परचम कुशाई से हुआ, जिसका एजाज कौंसलर अताशी फजल रहमान ने हासिल किया। उनके हमरा शैडो मिनिस्टर MP ब्रेस्टन इमरान हुसैन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाज शाह, ब्रेडफोर्ड के मीर जफर अली अवान, सबक मेयर आबिद हुसैन, जमाती और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं के अलावा शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। परचम कुशाई के बाद फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब में नन्हे बच्चों ने परचम थाम कर शिरकत की और खूब नारे लगाए। नन्हे फौजी ने बुजुर्ग शहरी के साथ परेड और सैल्यूट का शानदार मुजाहरा किया, जिसे शुरा ने बेहद सराहा। बाद में कौंसलर ताशी फजल रहमान ने सदर पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान के पैगामात पढ़कर सुनाए। वो तारीखी दिन है जिस दिन बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए एक ऐसे अलहदा वतन का जमहूरी मुतालबा करने के लिए मुत्तहिद होने का फैसला किया, जिसमें वो अपनी ज़िंदगी अपने अक़दार और रिवायत ख़ुसूसन इंसाफ, बराबरी और आज़ादी से गुजार सकें। इसलिए आज इस मौका पर हम बानियान पाकिस्तान की कुर्बानियों और जद्दोजहद को खराज अक़ीदत पेश करते हैं और एक मरतबा फिर उनके नज़रियात पर कारबंद रहने का अज़म करते हैं, जो नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद हैं। पाकिस्तान ने गैर मामूली चैलेंजेस का सामना किया और सुरखरू हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरा ने हम वतनों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सब दुआ करते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की मुल्क है। मैं इंतहाई सब लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। आज पाकिस्तानी कौंसिल दफ्तर में जो प्रोग्राम आया, इनकी स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्हें बड़े खूबसूरत से महफिल सजाई, और जितने भी पाकिस्तानी आए सबको अपने दिल गहराई से बहुत बहुत मुबारक हो। It's a really warm and friendly occasion and I'm very honoured to be here. तरफ से तमाम आलाने मुसलमानों को जहाँ जहाँ पास रहे उनको दिल के गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उनके जरिए पाकिस्तान आज़ाद हुआ और हम आज़ादी का सांस ले रहे हैं, और मेरी तो दिली दाग पाकिस्तान जो है वो खुश रहे, आबाद रहे। जितने भी लोग हैं सारे पाकिस्तानी, सबको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और सबके लिए दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान को खुशहाल रखे और तरक्कियाँ दें, दायमी तरक्कियों से आबाद रखे। अंदरूनी पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी बसते हैं और बैरून पाकिस्तानी जो दुनिया के कोने कोने में बसते हैं, उनके साथ साथ कश्मीरियों को भी आज के दिन के हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज पाकिस्तान के दिन के हवाले से मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ कि ये बहुत ही अहम दिन है पाकिस्तान मुल्क के लिए और हम जैसे पाकिस्तानी डायस्पोरा कम्युनिटी के लिए एक बहुत अहम दिन है और सबको हमारी तरफ से उसकी मुबारकबाद। 23 मार्च यौम पाकिस्तान का दिन आज ब्रेडफोर्ड में बड़े जोशो खरोश से मनाया गया और आज हमें ख़ास तौर पर खुशी है क्योंकि पाकिस्तान की अफवाज ने जो कारनामा अंजाम दिया है और आज जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीर के साथ भरपूर इज़हार यकजहती का इज़हार किया है, तो हमारे दिल बड़े खुश है कि पाकिस्तान में एक ऐसी जानदार और जो है ऐसी क़यादत आई है बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में, जिसकी वजह से पाकिस्तान यौम पाकिस्तान की जो खुशियाँ हैं वो आज दोबाला हो गई हैं। Today is my second day in charge. I came to the Abu Bakr Mosque on Stedman Terrace yesterday. I met Imam Faisal Dad yesterday, and I'm just really happy to come here today and meet some of the people here and talk to the children and the elders, and that's it. हमारे अकाबर के अफकार पर पूरी तरह अमल करेंगे, तब ही हम अपनी मुल्की और फिक्री आज़ादी को बरकरार रख सकेंगे। मोदी रोक सको तो रोक लो, जिसके अंदर प्यार समाया रोकने से नहीं रुकता, बस दिलदार के आगे झुकता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस मौके पर शुरा ने पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी मांगी। पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तानी कौम का मिली जज्बा दीदनी था। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रेडफोर्ड। मैनचेस्टर में भी यौम पाकिस्तान जोश खरोश से भरा गया। पाकिस्तानी कौंसलेट में पुरवकार तकरीब हुई, फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तनवीर नकवी की रिपोर्ट देखिए। 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी कौंसलेट मैनचेस्टर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब हुई। परचम कुशाई कौंसल जनरल आमिर आफ्ताब कुरैशी ने की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। नकाबत वेलफेयर अताशी फिजा न्याजी ने की। डॉक्टर आमिर आफ्ताब कुरैशी ने सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए, जिसमें पाकिस्तान की सलामती, मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशत गर्दी और पाकिस्तान को दरपेश पेचीदा मसाइल बारे कौम को एतमाद में लिया। Today, therefore, is an occasion to pay tribute to the struggle and sacrifices of our founding fathers and pledge once more to live up to their ideals that form the foundation of the idea of Pakistan. Pakistan
has surmounted unprecedented challenges and demonstrated resilience in the face of extraordinary circumstances. तकरीब में अरकान बरतानवी पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान, यासिन कुरैशी, एंड्रयू स्टीवन के अलावा मानचेस्टर कौंसिल के लॉर्ड मेयर जॉन हैचिसन समेत अहम शख्सियात शरीक हुईं। नन्हे बच्चों ने मिली नगमे पर उम्दा परफॉर्मेंस देकर समा बांध दिया। गुलकार एफी के ज़हीर लखेरा ने मिली नगमात गाकर हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। शुरका का कहना था कि वो पाकिस्तान के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। आज यहाँ पे पाकिस्तानी जो मैनचेस्टर ग्रेटर मैनचेस्टर के एरिया से हैं वो पाकिस्तान डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, तो मैं भी अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को पाकिस्तान डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हम सब पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि पाकिस्तान के लिए मेहनत करें, पाकिस्तान का नाम और रोशन हो। तमाम पाकिस्तानी भाइयों को पूरी दुनिया में 23 मार्च मुबारक, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे और हमारे मुल्क में अमन और तरक्की करे। हम तमाम लोग इस बात का अदा करते हैं कि जहाँ तक मुमकिन होगा हम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की दफ़ा के लिए जो कुछ कर सकेंगे वो यकीनन हम उसमें अपना हिस्सा डालेंगे। It's so great to be here at the Pakistani consulate celebrating Pakistan Day. I just want to wish everybody who's celebrating today a very happy Pakistan Day. आज जो 23 मार्च का दिन बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है मैनचेस्टर में, ये आज वो ख्वाब पूरा हुआ है नए पाकिस्तान का जो काज़ी आज़म ने और अल्लामा इकबाल ने सोचा था। आज इस वक्त हम सबको मुबारकबाद पेश करते हैं इस नेक दिन के लिए और अच्छे दिन के लिए, और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान और तरक्की करेगा। उस तरह खुशी मना रहे हैं कि जैसे जिंदा कौमें खुशी मनाया करती हैं। अपने तजदीद अहद का दिन है आज, और इंशाल्लाह ताला नया पाकिस्तान जो कायदे आज़म का जो ख्वाब था और अल्लामा इकबाल का ख्वाब था वो आज पूरा हो चुका है, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करेगा इंशाल्लाह। हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है, और मैं समझता हूँ कि पूरी हमारी कौम को ये दिन मनाना चाहिए। योम पाकिस्तान है, और योम पाकिस्तान का मकसद ये है कि हम एक अहद करते हैं, अहद करते हैं कि एक मुल्क हम जब बनाया गया था तो अहद किया गया था 1940 में, और आज एक तजदीद अहद का दिन है कि हम अपने इस पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। And from Russian Ward and the City Council, I want to congratulate the Pakistan Day and the celebration of it. I want to add, I want to see Pakistan and the subcontinent live in peace and harmony. आज पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई थी, आज करार पास हुई थी, और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ही से आबाद रहे। आज हम योम पाकिस्तान यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं मैनचेस्टर कॉन्सुलेट में, और यहाँ पे तमाम कम्युनिटी के लोग आए हैं, और हमने तजदीद अहद किया है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के जहाँ पे नारे लगाएं, और ये तजदीद के इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान है, और ये वो पाकिस्तान है कि जो उसका ख्वाब क़यादत में अल्लामा इकबाल ने देखा था, और पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब में सानहा क्राइस्ट चर्च के शोहदा के साले सवाब के लिए दुआया कलमात अदा किए गए। आखिर में पीर गिलानी ने पाकिस्तान की सलामती, इस्तेकाम और उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तेहाद और इत्तफाक के लिए खुसूसी दुआ भी की। जर्मनी की दारकूमत बर्लिन में भी यौम पाकिस्तान कौमी जोश जज्बे से मनाया गया। मरकजी तकरीब पाकिस्तानी सफारत खाने में मुनक़िद की गई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फैमिलीज के हमरा शिरकत की। पाकिस्तानी सफारत खाना बर्लिन में होने वाली पुरवकार तकरीब में सफीर पाकिस्तान जोहर सलीम ने कौमी तराने की गूंज में परचम कुशाई की। इस मौके पर सफारती अमला, मिलिट्री अताशी और पाकिस्तानी कम्युनिटी अपने अहले खाना के साथ बड़ी तादाद में मौजूद थी। तकरीब में तिलावत कुरान मजीद के बाद सदर और वजीर आज़म पाकिस्तान का पैगाम पढ़कर सुनाया गया। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान का कहना था, पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की के लिए कायद के फरमान, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर अमल पैरा होना होगा। भारत मसला कश्मीर को मुज़ाकरात से हल करे। उन्होंने जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के मुस्बत किरदार की तारीफ की।
دنیا بھر کی طرح یونان میں بھی یوم پاکستان کی تقریب روایتی جوش و جذبے کے ساتھ سجائی گئی، جس میں پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ قائم مقام سفیر یاور عباس نے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا، جبکہ اوورسیز پاکستانیوں نے وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سفارت خانہ پاکستان ایتھنز یونان میں 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ صحافی برادری، سماجی، سیاسی، کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ فضا قومی ترانے سے گونج اٹھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ویلفیئر اتاشی اقبال حیدر، ایڈیشنل ڈائریکٹر صفی اللہ جوکھیو نے یونان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کو یوم پاکستان کی مبارکباد دی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ آج قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کا خواب پورا ہوا اور ہم ایک آزاد ملک میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت آزادی کا حصول کٹھن تھا، لیکن قائد اعظم کی محنت، ایمانداری، حکمت عملی اور ہماری دیگر رہنماؤں کے خلوص کی وجہ سے آزادی کا خواب پورا ہوا۔ خواتین و حضرات، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کی قدر ان سے پوچھیں جن کی زمین پر کوئی بیرونی فوج قابض ہے یا جن کے ملک میں خانہ جنگی کی وجہ سے رہنے کو جگہ نہیں، اور وہاں کے لوگ مہاجرین بن کر دوسرے ممالک میں رہتے ہیں۔ قائم مقام سفیر پاکستان یاور عباس نے صدر اور وزیر اعظم پاکستان کا پیغام پڑھ کر سنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے۔ ہم کسی قسم کی شر پسندی نہیں چاہتے، لیکن اگر ہمارے امن کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے۔ دیگر مقررین نے بھی اپنے خطاب میں کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کی حمایت کی اور پاکستانی کمیونٹی کو یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کی۔ تقریب میں ننھے بچوں نے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کر ماحول گرما دیا۔ اس موقع پر ملی نغمے نے حاضرین کو پرجوش بنا دیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی کمیونٹی نے وطن سے محبت کا خوب اظہار کیا۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں یاور عباس صاحب کو، جنہوں نے بہت اچھا آج کا پروگرام یہاں پہ وہ سجایا ہے، اور عمران خان صاحب کا، پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو میسیج پڑھ کے سنایا گیا تو وہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم اپنے فاؤنڈر آف پاکستان جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جن کی کوششوں کی وجہ سے ہمیں ایک آزاد ملک ملا۔ یاور عباس صاحب اور ان کے جتنا سفارت خانے کا عملہ تھا اس کی موجودگی میں پاکستانی کمیونٹی جو ہے جتنی بھی یونان میں مقیم ہے اس نے اس میں شرکت کی، اور شاندار الفاظ میں پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور دنیا کو واضح پیغام دیا گیا کہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں بھی پاکستانی آباد ہیں وہ پاکستان کے نام کو زندہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ آج کے دن اس بات کا عہد کیا جا رہا ہے اور یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہماری حکومتیں، ہمارے لوگ، ہمارے کرتا افراد بالآخر قائد اعظم کے اس نعرے کی طرف واپس آئیں جس کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا، جس میں اقلیتوں کے برابر کے حقوق دیے گئے تھے، جس میں غریب اور امیر کے لیے قانون کی بات کی گئی تھی، جس میں تحفظ اور انسانیت اور فلاح کی بات کی گئی تھی۔ تو آج کے دن میں ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم تمام پاکستانی مل کر اس فلاح کی طرف گامزن ہوں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سفارت خانہ یونان ایتھنز میں آج 23 مارچ کا پروگرام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور پاکستانی برادری کے بہت ساری شخصیات یہاں آئی ہیں، جن میں یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کی وہ نظریاتی حیثیت اور اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہم سب جو ہے یکجا ہیں۔ آخر میں یوم پاکستان کا کیک بھی کاٹا گیا اور ملکی سلامتی اور ترقی کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں۔ نوٹنگھم میں کریمیا انسٹیٹیوٹ اور برٹش آرم فورسز کے تعاون سے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس کا مقصد برطانوی افواج اور ان کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی کرنا تھا۔ شہزاد اربان کی رپورٹ دیکھیے۔ نوٹنگھم ویسٹ برچ فورڈ میں برطانوی افواج اور ان کی فیملی سے اظہار یکجہتی کے لیے ایک پروقار تقریب کا اہتمام ہوا۔ تقریب میں 32 پاکستانی کمپنیوں نے بھرپور تعاون اور سپورٹ کا اظہار کرتے ہوئے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے۔ ہیڈ آف یو کے انگیجمنٹ لیفٹیننٹ کرنل کیتھ نے شرکاء سے دستخط لیے۔ تقریب میں ڈپٹی لیفٹیننٹ آف نوٹنگھم مسٹر ڈیوڈ سنتھ اور ڈاکٹر مشرف حسین سمیت ممتاز پاکستانی کاروباری شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ شرکاء کا کہنا تھا، ہماری افواج ہماری حفاظت کی ضامن ہیں۔
हमारे जवान सरहदों पर दिन रात सीना ताने खड़े रहते हैं ताकि हम चैन से सो सकें। I think it's wonderful that they have agreed to sign the Armed Forces Covenant, because whoever goes to war, we should remember everybody, we should treat them all fairly. And as we know, the families also suffer when people go to war. They're left alone at home, wondering how their loved ones are. And so to acknowledge them as well, I think is a wonderful opportunity. शुरका का मजीद कहना था कि हमारी दुआएं और हमारा ताउन हर वक्त मुसल्लह अफवाज और उनके ख़ानदानों के साथ है। शहजाद अरमान, नोटिंगम। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन ने डरबिन में कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम के खिलाफ भारतीय काउंसलेट के बाहर मुजाहरा किया, जिसमें पाकिस्तानी, कश्मीरी और मकामी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की और कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मुजाहरे का एहतमाम पाकिस्तान साउथ अफ्रीका एसोसिएशन ने किंग्स मेड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम डरबन और इंडियन कौंसलेट डरबन के सामने किया। मुजाहरे की क़यादत एसोसिएशन के मरकजी सदर मोहम्मद आसिफ अब्बासी, मरकजी चेयरमैन फयाज खान, डरबन के कायम मकाम सदर मिर्जा वसीम बेग और चेयरमैन डॉक्टर अख्तर हुसैन और दीगर शख्सियात ने की। मुजाहिरीन ने हाथों में कतबे उठा रखे थे जिन पर इंडियन अफवाज के मजालम के हवाले से नारे दर्ज थे। इस मौके पर फिजा गो इंडिया गो, मोदी मुर्दाबाद और कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी के नारों से गूंजती रही। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि कश्मीरियों पर भारतीय अफवाज के मजालम की इंतहा हो चुकी है। इंडिया ने अपने जंगी जुनून के जरिए पाकिस्तान को हरासा करने की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खाना पड़ी। मुजाहिरीन का कहना था दुनिया में इस वक्त भारत तन्हा हो चुका है। इस मौके पर फयाज खान, आसिफ अब्बासी, डॉक्टर अख्तर हुसैन और दीगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इंडिया कश्मीरियों पर जारी मजालम फौरी बंद करके उनके जायज़ हकूक दे और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर फौरी अमल करे। आज का हमारा ये एहतजाज जो था, ये हमारे कश्मीरी भाइयों के हक़ खुद अरादियत के लिए था। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 70 सालों से कश्मीरी अपने हक़ खुद अरादियत की जंग लड़ रहे हैं और कोई भी उनकी बात सुन के राज़ी नहीं। और अभी ये हालिया जो जंग हुई है उसका भी बुनियादी जो पीछे इशू था वो पाकिस्तान का, वो कश्मीर की आज़ादी ही था। तो जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, अमन नहीं हो सकता। अगर आप खित्ते में अमन चाहते हैं तो कश्मीर को आज़ाद किए बगैर ये अमन कभी भी नहीं हो पाएगा। इसका मकसद कश्मीर से सॉलिडरिटी था। कश्मीरी भाइयों और बहनों से हमने उनके हक़ खुद इरादियत के लिए आज हमने योम यकजहती को मनाया और उनके हक़ में मुजाहरा किया कि इंडियन फोर्सेस कश्मीर से निकल जाएं। दिस प्रोटेस्ट वी डिमांड इंडिया मस्ट लीव कश्मीरी टू डिसाइड देयर फ्यूचर। कश्मीरी मस्ट बी इंडिपेंडेंट। कश्मीरी मस्ट हैव देयर वोटिंग राइट and self-determination, and we also demand immediate withdrawal of Indian Army from Kashmir and stop killing, stop making jail to Kashmir. They are making world largest biggest jail in Kashmir. यहाँ डरबन में एक सोच और एक मेंटेलिटी ये कि ये एक हिंदुस्तान की बारी अक्सरियत के लोग यहाँ पे होते हैं, तो यहाँ पे कश्मीर या पाकिस्तान के हवाले से कोई नाम नहीं ले सकता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाकिस्तान एसोसिएशन एज ए ऑर्गेनाइजेशन इस लेवल पे, इस कैलिबर पे पहुँच चुका है कि हम पाकिस्तान के मुतालिब, पाकिस्तान के हक़ में और पाकिस्तान के मुखालिफ में रोकने के लिए जो भी इक़दामात उठा सकते हैं हम एडुकेट कर सकते हैं। और हमारे बाहरी जो ज़्यादातर हमारे जो मेंबर्स हैं वो इस काबिल हैं कि वो हर इशू को बहुत एहसन तरीके से उजागर कर लें। मुजाहरे में हर तबका फ़िक्र के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। आखिर में भारतीय कौंसलेट के जिम्मेदारों को यादाश्त पेश की गई और कश्मीरी मुसलमानों और आलम इस्लाम के मुसलमानों के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। हांगकांग में फैशन के फ़रोग़ के लिए फैशन कॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में काउंसिल जनरल ऑफ पाकिस्तान अब्दुल कादिर मेमन ने खुसूसी शिरकत की। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। हांगकांग में मकामी कंपनी के ज़ेर एहतमाम फैशन कॉन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें पहली दफ़ा कौंसल जनरल अब्दुल कादिर मेमन ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इस मौके पर कौंसल जनरल पाकिस्तान ने पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत और उससे जुड़ी दीगर सनतों के बारे में रोशनास कराया। उन्होंने अगले माह पाकिस्तान में होने वाले टेक्सपो से मुतालिक भी आगाह किया। टेक्सटाइल शोबे से मुंसलिक अफराद को शिरकत की दावत दी। इस बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। खबर की तलाश हो तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv और देखते रहिए 92 न्यूज़।